tene memang langges la tugu sino ki ngata nyetup chik gyagar junge tene coronavirus zerkane nadiambo kaw kana nistong nishi lo kana zamning kang pena kyapste memangula mas kalas pardo jike tene koy langste pen in nang gyagar junge daksa doctor khaspa gune scientist khaspa gune tene teola manchet chi chose daksa ngata vaccine ji bingte nok te vaccine bo daksa gyagar gang penang la salan chita enok para medical staff gune yang khas karti o structure chola changmen ngal la ngata medical doctor khorang gune para medical khorang gune tene salan chita enok nya sama tu gisinok kazuk tene ngata uya mang pojik spelta no ki vaccine be cheste reaction mang poj du uya mang poj to in na teo kena tan late samay ka tene ngata den machesla daksa ngata kargil ne juna ngata semo sap khondang skundun dang medical superintendent dang doctor khaspa samay te ka tene vaccine sal tena choche sanskar chok suna ta ngata doctor gun nang para medical staff samay ka te vaccine bo sal teno te be kena mimang langes la tena juchesin ki nija sama sap machabala jik majisela tente vaccine bo sal bo shos ma khakcha dino kazuk juna daksa chupa tena ngata nganjila chin pi jar kan zurmor jong skya ngata hepatitis b jar kan zurmor skya ngata tene chichak jar kan zurmor skya te zurmo sama changma ka tene vaccine sal te mane te zurmo gon magyal khak ina daksa tene ngata changma khares gapte ngata tama chikta chiga tene bar beste ma objal mang poji memang ayot no tente objal changma metkan chochesepi tene e ngata doctor khaspa ne joskane e vaccine bo kana salches bo ma khakcha ne sama memang changma jik machiga chap ma chaba tene voluntarily hospital skyote vaccine bo sal zerte ngata jugo shas no tepinga rewarak tene uya tene azuga iches machela और denbala iches choste tene coronavirus se e vaccine bo kana sal go shas bo ma khakcha no sirka jing nang jin tene vaccine bo kana sal jino gyagar junge tene yu charji chaki mimang changma yu cover chochese tepi kana nam shik tene ngata district administration ya sub regional block administration dang tene medical department niske tene juwa nang jin daksa khone priority fast ka tene medical staff tes din ngata gyagare army chokshun yang tene covid 19 tene front line worker sama sal jiteno tes tene mimang sama tene age wise yani 50 plus jiyot kyak tene yang kazuk tene administration e juwa nang jin nija sama skyot jada nya po nija sama tene teola tenton machola tantan la hospital da medical center gula skyot te e vaccine mon औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि वो कोविड वैक्सीन जो अभी चल रहा है हमारे कारगिल में बहुत पहले शुरू हुआ है, अब आज द्रास में भी हो रहा है, तो तमाम लोगों से मेरी मुद्दा अपील है कि वो कोविड वैक्सीन करें। अफवाहों पे लोगों के अफवाहों पे कान न धरें। तो हमारे एक्सपर्ट्स और तमाम डॉक्टरों ने इस कोविड वैक्सीन को एक अच्छा वैक्सीन करार दिया है, तो लिहाजा मेरी तमाम लोगों से अपील है कि वो कोविड वैक्सीन करें। कोविड वैक्सीन के बाद भी हमारे जो प्रिकॉशंस हैं जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सबों का भी खास ख्याल रखें। तो अभी जो है हमने पहले जो है डॉक्टर्स वगैरह फ्रंट लाइन वर्कर्स को देने का किया है, उसके बाद फिर जो हमारे पुलिस महकमा है उनको देने का है, उसके बाद तीसरे मरहले में हम अपने पब्लिक को देने के लिए जा रहे हैं। तो पब्लिक से मौदाना अपील है कि वो सारे आके इस कोविड वैक्सीन को करें। Gerçit Gampuna Tsuksla Zille Kargilong January Ngistung Issues Sakshigi Shuzugna Fallaga COVID-19 Huda Tangma Gozuk Chachainzuk The Vaccine Pu Ngatir Gerçit Kuryang Choskanchigin Bomaguiresi Gyakpanuk Deluxi Mehkame Lasmiun Duna Dun Labingse COVID Naz Gat Burkhan Elasmiun Saga The Hudao Tangma Chachainzuk The Siriang Bomaguiresi Gyakpanuk Mi Karot Suma The Hudao Tangma Chachain The Jugna Tsirika Mimangs Gama The Hudao Tang Koreanu hukumatis elan bacain mimangsla join hukumatis elan bana yanti respu lebachik di vaccine pu met khamet tangse rangna rangi nangmi unis chung lux bazat yantang sak chung selusna gersit chung selushain mahkama siyat zilla kargili choksna mimangsi fantoksifia नीट कारगिल 2021 नेशनल इवेंट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म कारगिल में पिछले कई दिनों से लगातार बड़े पैमाने पे चल रहा है। इस साल नेशनल इवेंट फॉर एडवेंचर टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जानिब से यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कारगिल जिले में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और इस इवेंट के दौरान यूनियन
मिनिस्टर ऑफ स्टेट टूरिज्म एंड कल्चर प्रभात सिंह पाटिल खुद कारगिल आए और मुख्तलिफ प्लेयर से बात की और मुख्तलिफ नेशनल इवेंट्स को इनॉग्रेशन किया और साथ ही साथ नेशनल वोटर्स डे जो कि आज से है और नेशनल टूरिज्म डे बड़े पैमाने पे जिले कारगिल में मनाया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट टूरिज्म एंड कल्चर का मानना है कि आने वाले वक्त में करगिल को टूरिज्म के लिहाज से आगे बढ़ाने के लिए काफी कोशिशें किया जाएगा और कारगिल में जिस तरह से लद्दाख में टूरिज्म की और खासकर विंटर टूरिज्म की काफी स्कोप है, इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको बताते चले कारगिल एक ऐसा वाहिद जगह है जहां पे एयर कनेक्टिविटी को लेके लोग पिछले 70 साल से डिमांड कर रहे हैं और एयर कनेक्टिविटी सिविल एयरपोर्ट जब तक नहीं बनाया जाता तब तक कारगिल टूरिज्म के लिहाज से जो स्कोप और पोटेंशियल कारगिल के अंदर हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बढ़ सकता। इसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट को गौर करने की अशद जरूरत है क्योंकि लगातार हुकूमत की जानिब से आश्वासन यकीनन दिया जाता है लेकिन उसके ऊपर गौर करते हुए फिजिकल इंप्लीमेंटेशन करते हुए नजर नहीं आता क्योंकि कारगिल एयरपोर्ट कारगिल के आवाम का 70 साल दीना मांग है और इस साल अक्रॉस लद्दाख मुख्तलिफ इवेंट्स विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से देखने को मिल रहा है। लद्दाख से वीडियो जर्नलिस्ट करमजीत सिंह के साथ मोहम्मद धरती पर मुझे रहने का मौका मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं कारगिल के अवाम को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। आपके पास दुनिया की वो चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमाएं आपके पास है। आपके पास में ऐसा सौंदर्य है जहां पर आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नेतृत्व दे सकते हैं, खासकर स्कीइंग के क्षेत्र में। तो जो साहसिक पर्यटन के लिए लोग अपनी रुचि रखते हैं उनके लिए वो कारगिल सबसे बेहतरीन जगह है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए बहुत जल्दी हम सब लोग एक साथ जुटकर उस इंस्टीट्यूट को जल्दी खड़ा करें, हमारे बच्चे ताकि ट्रेनिंग ले सके। साथ में पर्यटन मंत्रालय की दृष्टि से मैं कहूँगा कि चाहे वो होम स्टे का मामला हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है, उस ट्रेनिंग के लिए मंत्रालय तैयार है। और ये जो हमारा समन्वय है जो मैं कल से यहाँ देख रहा हूँ, चाहे वो काउंसिल का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो और चाहे भारत सरकार का हो, ये हमको बहुत गति देगा। लेह से लेकर उस मुरबेक मानिस्ट्री तक बीच में जितनी भी जगह पे जरूरत पड़ेगी, गार्बेज के लिए, स्नैक्स के लिए, टॉयलेट्स के लिए और खास करके ऑक्सीजन पार्लर के लिए, उन एस्टेब्लिशमेंट को भी मैं पूरा करने का काम करूंगा। आज पर्यटन दिवस पर कारगिल की धरती पर मुझे रहने का बोल चुका हूँ, उसके लिए बोल चुका हूँ। मुझे आज इस बात की खुशी है पूरे कारगिल के वासियों की ओर से, जो हमने एक सपना देखा था, हमने कोशिश किया था, वो कामयाबी जो आज हमें मिला। इस नीट प्रोग्राम का जो हमारा मेन विजन है, कारगिल को एक विंटर स्पोर्ट्स के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड एथलेटिक्स के साथ साथ एक विंटर टूरिज्म के एरिया के हिसाब से हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। जिस तरह आप सब जानते हैं, पूरे लद्दाख खित्ता जो है टूरिज्म के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन एक लिमिटेड सीजन के लिए आते हैं और खासकर कारगिल जो है एक ट्रांजिट पॉइंट को मनाया जाते हैं। जो यहाँ से लेह से श्रीनगर जाते एक रात 2 रात ठहर जाते, फिर जंस्कार जाने वाले यहाँ 1-2 नाइट स्टे करते हैं। उसके अलावा भी कारगिल में बहुत सारे जो पोटेंशियल्स है, चाहे वो बुद्धा स्टैचू है, चाहे यहाँ के जो रूरल विलेजेस है और यहाँ के जो अलग अलग जो बल्ती पुरकी, खासकर पुरकी कल्चर है, यहाँ के जो बहुत सारे पोटेंशियल रूरल टूरिज्म में है, विंटर टूरिज्म में है, ये सारा जो है हमें दुनिया के सामने हम सबको मेहनत करके लाना पड़ेगा। चाहे लोकल लीडरशिप हो, यहाँ के काउंसिल हो, यहाँ के मीडिया बंधुओं हो, यहाँ के ट्रेवल एजेंट है, हम सबको इसी तरह एक एक करके मेहनत करके हमको आगे लाना पड़ेगा, तब जाके टूरिस्ट यहाँ आएंगे। ना कि सरकार को डिमांड करके सरकार यहाँ टूरिस्ट नहीं ला सकते, ये हम सब जानते हैं। हम टूरिस्ट को क्या ऑफर कर सकते हैं, सरकार बेशक मदद कर सकते हैं, वो अच्छी तरह से कर रहा है। तो ये हमारा विजन है, कारगिल को आने वाले दिनों में पूरे दुनिया में एक वार जोन के लिए नहीं बल्कि पीस जोन के हिसाब से, टूरिज्म डेस्टिनेशन के हिसाब से प्रमोट किया जाए और रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दे। ये सपने के साथ आज यहाँ पे माननीय टूरिज्म मिनिस्टर खुद यहाँ पे हमने लाके जो नेशनल टूरिज्म डे जो है यहाँ पे कारगिल में माना, ये हमारे पूरे कारगिल के इतिहास में नहीं, पूरे भारत के इतिहास में एक सुनहरी शब्दों से लिखने वाले एक दिन हम सब के लिए है।
सर, जिस तरह से टूरिज्म के आपने पोटेंशियल की बात की, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है खासकर विंटर टूरिज्म के हवाले से, लेकिन कनेक्टिविटी एक अहम चीज़ होता है, कनेक्टिविटी के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो एयरपोर्ट के हवाले से लोग लंबे वक्त से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जब तक एयरपोर्ट नहीं बनेगा, जितना भी पोटेंशियल है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बढ़ा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने यहाँ पे अपने स्पीच देते हुए माननीय मंत्री जी के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सरकार की जानकारी मिली है। पार्लियामेंट में भी मैंने काफ़ी दफ़ा ये इस बात को छेड़ा है। यहाँ 3 प्रकार के जो कनेक्टिविटी की हमें ज़रूरत है। एक तो रोड कनेक्टिविटी, दूसरा एयर कनेक्टिविटी और तीसरा टेली कनेक्टिविटी। तीनों पे सरकार जो है बहुत जोर शोर से हम काम कर रहे हैं। जोजिला टनल के बारे में आप सबको जानकारी है, मैं यहाँ लंबा नहीं खींचूंगा। एयर कनेक्टिविटी का जो है आप सबके जानकारी में, मैंने स्पाइस जेट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो है अजय सिंह से भी बात किया, उसी तरह मैंने विस्तारा से भी बात किया, एयर एशिया से भी मैंने बात किया। तो सभी एक प्राइवेट एयरलाइंस को पकड़ के हमने कोशिश किया कि कारगिल में ATR जहाज कैसे उतार सके। ठीक है, एयरपोर्ट एक्सपेंशन का मांग यहाँ लोगों का देरीना है, उसमें भी हम काम करेंगे। अब उस पर टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं मिलने के कारण से वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। आप सब जानते हैं, आगे पहाड़ी पीछे खाई है, तो कहाँ एक्सटेंड करके ले, या तो पहाड़ को करना पड़ेगा या तो खाई को भरना पड़ेगा, या तो दूसरा साइड सेलेक्ट करके वहाँ वो करना पड़ेगा। वो हमारा हुआ एक लॉन्ग टर्म विजन और वो काम में समय लगेगा। तब तक के लिए हमारे पास जो छोटे एयरपोर्ट है उस पे छोटे ATR हम किस तरह से उतार सकते हैं, इसलिए प्राइवेट एयरलाइन से हमने बात करना शुरू किया है। लेकिन एक कॉमर्शियल वायबिलिटी ऑब्वियसली देखता है, ट्रैफिक कितना है वो ऑब्वियसली देखता है। तो ट्रैफिक फ्लो कम होने के कारण से वो आने के लिए राजी कंफर्टेबली नहीं हो रहा है। तो गैप फंडिंग के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रिक्वेस्ट किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो गैप फंडिंग करे, तो टूरिज्म को लेके सिविल एयरलाइंस यहाँ पे आए, और साथ ही साथ यहीं के जो लोकल बाशिंदा है उनको, चाहे वो हेल्थ पर्पस के लिए जाना पड़े, हज पर्पस के लिए जाना पड़े, या उसी तरह एजुकेशन पर्पस के लिए जाना पड़े, वो सारा एक सुविधा हो जाएगा। तो उस पे हम सारा लगे हुए हैं। टेली कम्युनिकेशन के बारे में आप सबको जानकारी है, इसी साल हमने जियो 4G नेटवर्क कारगिल के बहुत सारी जगहों पे हमने इंस्टॉल किया। तो आज ज्यादातर, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे कारगिल को कवर किया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में टीकाकरण का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं यूनियन टेरिटरी लद्दाख में भी 16 तारीख से देश भर के दूसरे हिस्सों की तरह, अन्य हिस्सों की तरह लद्दाख में भी कोरोना वायरस को लेकर टीकाकरण लगातार जारी है। फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है, और इस वक्त जिन लोगों ने कोरोना वायरस के हवाले से कोविड वैक्सीन किया है उनकी क्या स्थिति है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और मुख्तलिफ लोगों से हम बातचीत करेंगे जिन्होंने पिछले दिनों वैक्सीन किया है, और वैक्सीनेशन के बाद पोस्ट वैक्सीनेशन किस तरह के हालात है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करके उन्हीं की जुबानें आप तक एक्सपीरियंस और जो हालात है, स्टेटस है, वो पहुंचाना चाहेंगे। बातचीत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर अब्बास साहब है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपने कोविड के हवाले से वैक्सीनेशन किया है, कब आपने वैक्सीनेशन किया? सर, मेरा वैक्सीनेशन जो है आज 10:30 बजे हो गया, तो अभी लगभग 5 बजने वाला है। तो अल्लाह के फजल से वैक्सीनेशन के बाद जो है कोई खास तकलीफ जो है मुझे अभी तक महसूस नहीं हो रहा है। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा सीएमओ साहब ने जो पहला डोज करके 18 तारीख को वैक्सीन किया था, जो हमारे सीएमओ ऑफिस, डिप्टी सीएमओ ऑफिस या जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जेंट्स है, लेडीज है, डॉक्टर है, पैरामेडिकल है, सबका सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक है। उनमें से सिर्फ 2-4 लोगों का यही कहना है कि रात को मामूली सा बुखार, और किसी को कोई सर दर्द, और कुछ लोगों को जो है बॉडी में जो है ना एक्स एंड पेन्स होते हैं हल्का सा, वही 2 मतलब जैसे कि हमारा अभी तक 200 किया होगा वैक्सीन, उसमें से 10 लोगों को ऐसा कोई मामूली तकलीफ के अलावा बाकी सब के सब ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे वैक्सीनेशन के हवाले, चूंकि आप डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं और इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स को लगातार वैक्सीनेशन जो है वो किया जा रहा है, कोविड-19 कहाँ पहुंचा है सर? हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं। तो आज इस स्टेज पे जब हमने संस्कार में वैक्सीनेशन हमारा हो गया खत्म तो नहीं हो गया, मतलब एक फेज हो गया। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल में ये सेकेंड आज अख्तिताम तो होने जा रहा है, तो इसमें हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमको दिक्कत, मतलब रिक्वेस्ट ये करना है हेल्थ केयर वर्कर से कि आप जो है अपनी बारी का बिल्कुल इंतजार करके उसी टाइम पे आके अपना वैक्सीनेशन करें।
एक एक को बुलाने की या अगली दफा होगा इस तरह का बारीक मतलब पीछे पोस्टपोन करने की कोशिश न करें कोई लोग। तो जैसे हमारा आज 93 टारगेट था और 93 के अगेंस्ट में हमारा कम से कम 76 आज 76 अचीव किया, 76 हो गया। 2-4 लोग और आए थे, उनके लिए हमने वाइल नहीं खोला क्योंकि इसमें 10 नफर या 8 नफर जब तक नहीं हो जाएगा वैक्सीन वेस्टेज को कम करने के लिए वो नहीं खोलते हैं, तो अगले सेशन में आके करेंगे। और इसमें एक खास बात ये मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग समझते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा, क्या वैक्सीन करना है, अभी तक मैं ठीक हूं, या कोई सोचेगा मैं जवान हूं। तो उनसे रिक्वेस्ट है, वैसे लोग चाहे हेल्थ केयर हो चाहे बाद में कोई जो जनरल हमारा पॉपुलेशन हो, आपको समाज के तय एक जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि आज अगर आप वैक्सीन खुदा न खास्ता ना करें, कल को कोरोना वायरस आपके थ्रू जाके आपके घर में दादा को, दादी को, नाना नानी को, या जैसे आपका मसलन कोई दूसरा बुजुर्ग चाचा हो, मसलन चाची हो, आपके हमसाये में हो, आपके जो मोहल्ले या गांव में हो, उनको खुदा न खास्ता इस साल की तरह कोरोना का इन्फेक्शन आपके जरिए से लगे और वो खुदा न खास्ता कल सीरियसली बीमार हो जाए, उसको तकलीफ हो जाए, या खुदा न करे अगर उसकी जान को खतरा और उसका फौत हो जाए, तो उसका मसूल और जिम्मेदार जो है हमें। और मैं एक अरस और सभी हमारे हेल्थ वर्कर से, इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जहां पे हमारे के वर्कर्स जिन लोगों ने वैक्सीन किया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त स्थिति क्या है वैक्सीनेशन के बाद जो अफवाहों का बाजार गर्म है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के वैक्सीन स्टोर कीपर खुद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, मोहम्मद हसन साहब। तो इनसे जानना चाहेंगे, सर आपने कब किया वैक्सीनेशन? सर वैक्सीनेशन से पहले ऐसा सोचा था, जो सोशल मीडिया पे जो गली बाजारों में ऐसे ऐसे अफवाह थे कि इससे मतलब अजीब अजीब से अफवाह दे रहा था, लेकिन जब हमने वैक्सीन किया तब हमें पता चला कि ये वैक्सीन जो है बिल्कुल सेफ है, कोई ये नहीं है। क्योंकि 9:45 बजे मैंने वैक्सीन किया था मुझे, और आज हमने यहाँ पे 76 नफर को हमने वैक्सीन किया था, उसमें से किसी को भी कोई बुखार, कोई भी मतलब साइड इफेक्ट, माइल्ड साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। अब इसमें ऐसा है कि अब थोड़ा बहुत तो हर किसी वैक्सीन में होता है, जैसे बुखार होना, बॉडी में थोड़ा बहुत दर्द होना, वो तो आम ये होता है, माइल्ड होता है इसमें। बाकी इसमें पब्लिक से यही गुजारिश है कि इससे आगे वही वो जो व्हाट्सएप पे जो अफवाहें आते हैं, सोशल मीडिया पे जो आता है, गले कुचुंग में जो अफवाहें, तो उनको ना सुनते हुए इस वैक्सीन को जो भी जो आगे जो आने वाले जितना भी जो हमारा फ्रेंड हेल्थ वर्कर्स है, बाकी हमारे केस अबू को जो नेक्स्ट फेज में हो रहा है, उन सब से यही गुजारिश है कि जितना भी हो सके वैक्सीन को जो है अच्छी तरह से लगाए। शुक्रिया। जानते हैं, हमने मुख्तलिफ हेल्थ केयर वर्कर्स से बात की, डॉक्टर्स से बात की, डिप्टी सीएमओ साहब से बात की, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर से हमने बात की और जानने की कोशिश की वैक्सीनेशन के बाद की स्थिति क्या है। जिस तरह से अफवाहों का बाजार इस वक्त गर्म है कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर, लेकिन माहिरीन और एक्सपर्ट्स खासकर डॉक्टर्स का मानना है कि ये वैक्सीन हमारे लिए और खासकर कोविड-19 जैसे महामारी से लड़ने के लिए बहुत ही अहम और मुफीद हैं और हमें आगे बढ़ के कोविड-19 के हवाले से टीकाकरण करना अहम है। ये हम नहीं, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले कोविड-19 के हवाले से टीकाकरण किया है, कोविड-19 को लेके वैक्सीन किया है और वैक्सीनेशन के बाद की स्थिति क्या है वो हमने जानने की कोशिश की। तो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन किया है, उनका मानना है कि कोई माइल्ड जो साइड इफेक्ट हैं वो भी दिखाई नहीं दिया है और जो स्थिति है एकदम नॉर्मल है कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बाद और किसी भी तरह की साइड इफेक्ट्स बड़े पैमाने पे देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का मानना है और अपील कर रहे हैं लोगों से कि कोविड-19 के हवाले से जब भी हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से लोगों को इत्तला दिया जाता है, अपने बारी आने पर आगे आके कोविड-19 का टीकाकरण करना काफी अहम और मुफीद है। बने रहिए गुलिस्तान के साथ, पल पल की अपडेट के लिए। Admissions open. Feel proud to be associated with a brand. Doon International School, a paragon of excellence. We transform kids into exemplary human beings. Refuse to be ordinary. Deeds, not words. Whatever we say, we actually do it. हर खास व आम को इतला दी जाती है कि पूरे मुल्क के साथ साथ जिला करगिल में भी 16 जनवरी 2021 से कोविड वैक्सीन के टीकाकारी का अमल शुरू हो रहा है। ये वैक्सीन मुल्क में ही तैयार किया गया है, जिसके पहले मरहले में
महकमा सेहत के हेल्थ वर्कर्स और इसके बाद दीगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिलाया जाएगा। इस सिलसिले में पहली किस्त में मुल्क भर में तकरीबन 3 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है, जिसके बाद सिलसिलावार तरीके से तमाम आबादी जुमरों की टीकाकरण के सिलसिले में सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा। लोगों से गुजारिश की जाती है कि जब भी सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा और आप सबकी वैक्सीन लगाने की बारी आएगी तो इस वक्त जरूर टीका लगवाएं और खुद को, अपने अजीजो अकारिब और रिश्तेदारों को महफूज रखें। आप महफूज तो मुल्क महफूज। महकमा सेहत आमा जिला करगिल की तरफ से मफाद आमा में जारी।